Summary of To Autumn by John by Keats. He is John Keats, now a very beautiful man, है ना? So, being a very beautiful man, he decided he will see everything in life as a thing of beauty. So, he was one of the most pioneer romantic poets. Now, by romance, I don't mean the kind of romance that you people think or fantasize about, the romance that is shown in the movies. No, 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 no. वैसा वाला नहीं बेटा, है ना? Romanticism was a movement in English literature in which everything was seen as a thing of beauty, each and everything. Once this fellow saw a pot, and that pot had certain tribal designs on it, so he wrote a poem on it. There was a boy in that tribe, a girl in that tribe. That boy was running behind that girl. So he did not see anything illegal or wrong happening over there. He said that the boy is trying to reach the girl, but time has paused and he will never be able to reach her. Why? Because it was a pot. The design was still, and it could not move. So he wrote this beautiful line. You might call it beautiful, you might call it glamorizing the wrong things, but whatever, nobody cares for your opinion, or for that matter, for mine. So this fellow and others like him, William Wordsworth, other romantic poets, they were like this fellow. Anything they would see, they would say, "Is this a thing of beauty?" They would try to find beauty in everything. So now in this poem, he is trying to glamorize autumn. He is trying to tell how beautiful the season of autumn is. So we'll start understanding this chapter because however casual I might try to sound, this is a very important poem. है ना, ये आता है एग्जाम में और तुमसे पूछ लिया जाएगा, फिर तुम रो दोगे, तो समझ ही लो ये. Come to page number 108. We'll read together from stanza 1. Season of mists and mellow fruitfulness. अच्छा, you haven't come to page number 108. अरे जल्दी करो. तो बुक खरीदनी चाहिए थी, अब खरीद लो. चलो जिनने खरीदी वो तो आओ, 108 पेज पे आ जाओ बेटा. Okay, we'll read now. Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run. पहले इन चार लाइनों को समझ लेते हैं. First, the poet calls autumn season of mists and mellow fruitfulness. Now you must know the meaning of mists. This is mist, this shining fog, this fog with moisture in it, with water droplets in it. वैसे तो fog has water droplets in it, but with a greater quantity of water droplets, it is called mist, है ना? It shines. And mellow fruitfulness, what does it mean? A kind of sweetness is in the air because every fruit is getting full to the core, every fruit is getting ripened. So because of that, there is a fragrance of sweetness in the air. So that's why he says season of mists and mellow fruitfulness. Now mellow fruitfulness is a kind of fragrance. तो वो मैं मोबाइल स्क्रीन में नहीं दिखा सकता, तुम्हें खुशबू नहीं दिखा सकते, है ना? So close bosom friend of maturing sun. What is the meaning of close bosom friend? Close bosom friend means very jigri yaar, है ना? So just like Sonu was to T2, this autumn is to sun. बहुत ही बढ़िया गहरी दोस्ती इसकी सूरज से. और मैच्योरिंग सन है, बड़ा हो रहा है ये सूरज. अभी क्या हो रहा है? आफ्टर ऑटम द सीजन ऑफ समर माइट कम, या वॉट एवर सीजन माइट कम. आई एम नॉट योर ज्योग्राफी टीचर, not your social science EVS teacher, and I don't care. So basically the poet has said ki this season of autumn is close bosom friend of maturing sun, conspiring with him how to load and bless. What is the meaning of conspiring? Conspiring is a negative word for planning, but the poet has used the word conspiring here because poets have certain kind of freedom. They can use any word they want. So the sun and the season of autumn, they plan together. Actually they don't plan together, they don't have brains. Just because it happens in this season, the poet is saying, because romanticism, say anything you want in a beautiful manner, that's romanticism. So he's saying that both these entities, the sun and the season of autumn, they are planning how to load and bless. What is the meaning of load? To make heavy, and bless. What are they going to make heavy? What are they going to bless? They are going to bless ivy vines, the vines that round the thatch eaves run. This is eave. This is eave. EAVE, eave. This portion of roof that protrudes out of the wall.
है ना. This portion is known as eaves. So on this eave there must be some vines growing. I couldn't find any image that could show it, depict this perfectly. तो इस पे इमेजिन कर लो बेटा, एक ऐसी बेल लटकती हुई इस ईव के ऊपर से गोल गोल घूमती हुई एक बेल जा रही है. करो ना इमेजिन क्या जा रहा है. तो उस पे क्या आएंगे, फल उग जाएंगे. अभी फल उग गए तो इसने क्या बोल दिया, फल उगेगा तो भारी हो जाएगी, तो लोड हो जाएगी. ब्लेस क्यों है, फल उग गए, ब्लेसिंग ही एक तरीके से. सो द पोएट सेज दैट the sun and the autumn, they conspire, they plan together to bless the vines that go around these thatch eaves. To bend with apples the mossed cottage trees. Now these are mossed cottage trees. Cottage trees is a kind of tree, and moss मतलब उस पे काई उग गई है. So moss has grown over this tree, and now this tree will have apples. Since apples are heavy, the branches will bend, so the tree will bend. That this much you can think yourself. And fill all fruit with ripeness to the core. Each and every fruit in this season will ripen to the core. What is the meaning of to the core? Till the very center. अभी तुम कच्चा आम लेके आओगे, बाहर बाहर से पका होता है, अंदर से कच्चा होता है, पर पूरा पका हुआ आम कोर तक, यानी बिल्कुल सेंटर तक, अंदर तक पका हुआ होता है. So every fruit in this season gets ripened to the core. टू स्वेल द गोड. अभी ये देखो लौकी होती है, लौकी करेला वगैरह, दीज आर नोन एज गोड्स. और मेरे को इंटरेस्टिंग वाली कुछ ढूंढनी तो मैंने इस शेप की ढूंढी. जरूरी नहीं है, नॉर्मल जो तुम्हारे घर पे आती है दैट इज ऑल्सो गोड. सो ऑल दीज गोड्स ऑल्सो दे गेट स्वलन अप, है ना, क्योंकि इनके अंदर भी रस भर जाता है. दिस गेट्स स्वलन अप. एंड प्लम द हेजल शेल्स. दीज आर हेजल शेल्स. दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग कोको पाउडर, चोको पाउडर, कॉफी पाउडर, जो भी बनाना होता है इसको कूट के बनाते हैं. कूटना याद आ रहा है, ठीक है. With sweet kernel to set budding more and still more later flowers for the bees. अभी सिर्फ इतना समझ लो, with sweet kernel का क्या मतलब है. ये जो बीज है इसके अंदर जो बुरादा होता है, the kind of powder that is inside it is known as kernel. It is sweet in taste. So these seeds, they get filled with this kernel, and next thing that it does is flowers are there, they start blooming. How do they start blooming? देखो, in the season of autumn things fall off from the trees, है ना, fruits and flowers and leaves, everything falls off. But ultimately what happens, these things fall off, and since these things carry seeds, the seeds ultimately go into the earth, and there new plants grow. So these new plants have their new flowers, so flowers will grow again because of the season of autumn only. The poet is trying to say that although autumn is the season in which things fall off from the trees and the nature tends to become naked, but at that time also what happens, new flowers are growing because of this process only. So he is saying that these flowers will start growing, and what will happen to the bees? He thinks that bees are very stupid. Bees will continue collecting honey, and their cells will clam. What is the meaning of cells? These little hexagonal rooms you are seeing na in this beehive, these are known as cells. अभी इसमें ये इतना शहद भर लेंगी मधुमक्खियाँ that it will start dripping off from the beehive. मधुमक्खी के छत्ते में से शहद नीचे टपकने लगेगा, है ना. And these madhumakkis, he thinks that these honeybees are so stupid that they would think that summer hasn't ended. क्या ही समझते थे पोएट्स खुद को, पर ठीक है, वो कह रहा है तो कह रहा है. व्हाट कैन वी डू, है ना. द मधुमक्खीज कैन नॉट इवन फाइल अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट दिस पोएट. सो द पोएट इज सेइंग कि मधुमक्खियां जो है बेचारी, इनको लगता रहेगा कि बहुत ही मस्त गर्मी का मौसम खत्म नहीं हो रहा भाई साहब, शहद बनाते जाओ, तो शहद तो टपकने लग जाएगी. बट दिस फर्स्ट स्टैंजा यू मस्ट नो दैट इट फोकसेस ऑन द फुलनेस ऑफ थिंग्स. एवरीथिंग is getting heavy, everything is getting full, honey is dropping from the beehive. So basically this stanza talks about abundance that comes from the season of autumn, directly or indirectly. समझ में आया तो ठीक, नहीं तो वापस प्ले करके सुन लेना. अभी इसमें क्या समझी, तो वीडियो ही तो है ये. नेक्स्ट this poet in the next stanza starts अभी वही शुरू कर देगा ना, थिंकिंग कि एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल. तो अब लॉजिक से हट के ही इज गोइंग टू पर्सोनिफाई ऑटम इनटू सेवरल काइंड्स ऑफ विमेन. बहुत अलग अलग किस्म की औरतें बनाएगा वो इसको. सो फर्स्ट वुमन ही कंपेयर्स, लेट्स रीड ना. हु हैथ नॉट सीन दी oft amid thy store, sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind. Now you just need to understand. Realize क्यों बोला मैंने, understand. hath किसका word है, is an archaic old word for has. तो the sentence becomes who has not seen thee. thee मतलब you. oft यानी often, कई बार.
अमिड द स्टोर यानी अपने भंडार गृह के बीच में. सो बेसिकली व्हाट इज ऑटम? इन ऑटम सीजन क्रॉप्स आर रीप्ड, है ना, दे आर हार्वेस्टेड एंड दे आर केप्ट इन अ स्टोर. सो इट इज अ सीजन ऑफ abundance. That's what I told you in the first stanza na. So that is what the poet is saying, that autumn can be seen in its abundance, where in on its granary floor. This is granary floor. Granary floor basically is the place where reaped harvested crops are stored. तो granary floor पे दिख जाएगा autumn. कैसे दिख जाएगा? जो person लाके रख रहा है, that person is autumn. The presence of this abundance is autumn, है ना. And he compares autumn here to a beautiful girl whose hair is soft lifted. ये सॉफ्ट लिफ्टेड नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई देवी शक्तियां हैं. दिस इज सॉफ्ट लिफ्टेड. सो सॉफ्ट लिफ्टेड हेयर यानी हल्की हल्की जो है जुल्फे उड़ रही हैं हवा में. वाई? बिकॉज देयर इज अ सॉफ्ट विंड. काय की सॉफ्ट विंड है? विनोइंग विंड. दिस तो यू मस्ट हैव सीन. दिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रेन्स आर let drop from a certain height, and because of wind, because of air blowing, the garbage, the unwanted portion of the crop goes away, है ना. So this wind which is caused is known as winnowing wind. So this woman who is doing it, she is also being compared to autumn, or this poet is going to compare autumn to women doing 4 tasks. So the first task is winnower. तो ये जो विनोइंग कर रही है ये महिला भी ऑटम है इस पोएट की नज़रों में. और इसके जो बाल हैं वो ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे नहीं उड़ रहे हैं, डर जाओगे, ऐसे उड़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है जो ये कर रही है इस वजह से. Or on half-reaped furrow sound asleep. Now these are furrows, these wavular forms of lands, na? This crest and trough, crest and trough, crest and trough. The rows in which these crops are grown, these are known as furrows. So on a half-reaped furrow, यानी आधी आधी कटाई हो गई जिस फरो की, उस पे लेटी हुई है this woman. And she is drowsed with the fume of poppies. What is poppy? ये वाले इतने सुंदर फ्लावर होते हैं. ये पहली सुंदर चीज देखने को मिली कायदे से. So these beautiful flowers, just imagine a field full of these beautiful flowers, and it is being harvested, and on one of the furrows a beautiful woman is lying down, है ना. That's a beautiful scene. And she is drowsed. What is the meaning of drowsed? Enchanted, intoxicated with the fume of poppies. अब ये जो poppies होते हैं खस के फूल होते हैं और इनकी जो खुशबू होती है ना, इसमें एक हल्का सा एक मधोशी होती है. So that woman is madhosh, and she is lying down on that ground, on that furrow. While thy hook, this hook, है ना, this sickle, it spares द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स. यानी जिस पे ये लेटी हुई है उसके आसपास की सब छोड़ के, फूल छोड़ के, ये जो हुक है ये चलता जा रहा है, एंड इट इज हार्वेस्टिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड. सो इन दीज 2 lines, 3 lines, द पोएट इज कंपेयरिंग ऑटम टू अ वुमन हु इज हार्वेस्टिंग द फील्ड. She is harvesting, she is getting tired, she is getting intoxicated, and she is lying down on the furrow. 2 महिलाओं से कंपेयर हो गया. हाँ, then he says that sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook. अभी देखो क्या है, ये पॉपी के फूल कटे तो इनकी खुशबू जो है नदी पार भी जाएगी, और फूल जो है वो गोदाम में ले जाए जाएंगे. तो दोनों ही चीज़ों को एक साथ बोलते हुए पोएट क्या कह रहा है कि नदी पार अगर खुशबू जा रही है तो वो भी कौन लेके जा रही है? एक ग्लीनर. ग्लीनर क्या होता है? जो कटाई के बाद फसल को लेकर जाता है गोदाम में स्टोर करने के लिए, जहां भी ले जाना है उसको ग्लीनर कहते हैं. तो अब इसको गोदाम तक ले जाने वाला भी महिला भी कौन है? वो भी ऑटम है. जितनी महिलाएं खेत में काम कर रही है सब ऑटम है. सो द ग्लीनर दैट इज टेकिंग दीज फ्लावर्स टू द गोडाउन इज ऑल्सो autumn. And since the fragrance of these flowers is going to cross the brook also, he makes a beautiful image. ये तो काफी सुंदर बात है. वो कह रहे हैं कि ये यही महिला क्या कर रही है, टोकरी में फूलों को भर के नदी पार कर रही है. इमेजिन करो, काफी सुंदर है ना. एक ऐसी सुंदर सी महिला फूलों की टोकरी लेके नदी पार कर रही है क्योंकि वो खुशबू लेके जाना चाहती है उस पार. काफी सुंदर है. सो ही कंपेयर्स इट टू अ ग्लीनर. पर वो ग्लीनर में ये बच्चा क्या कर रहा है? तो हटाओ, चलो इस बच्चे को हटा दो बेटा. हाँ, ये अकेली सुंदर महिला जो है ये फसल लेके जा रही है, पर इसने फसल सर पे नहीं लिखी. इसने क्या लिखा है? स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस द ब्रूक. हेड अक्रॉस द ब्रूक यानी सर पे रख के जा रही है. तो ये सर पे रखो. हाँ, ये सर पे रख लो, पर इसको सुंदर बना लो. और इसकी जो फसल है, सुंदर तो चलो ये है, वी शुड नॉट से कि ये सुंदर नहीं है, पर इसकी फसल जो है वो क्या होनी चाहिए? फ्लावर्स होने चाहिए. कर लोगे? इमेजिन कर लोगे? समझ गए? समझ गए. ठीक है.
Then it says, or by a cider press with patient look, thou watchest the last oozings hours by hours. फिर वो क्या कह रहे हैं कि ये इसके इस सीजन के अंदर बहुत सारे जो एप्पल्स बनते हैं वो कभी जैसे खराब हो जाए तो उनको कहाँ ले जाना पड़ता है, साइडर प्रेस में. तुमको पिछले चैप्टर में बताया, आई टोल्ड यू इन दिस इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो, दैट व्हेन एप्पल्स दे टच द ग्राउंड, दे आर नॉट सेंट टू द मार्केट, दे आर सेंट टू मेक वाइन इन द साइडर प्रेस. So at that cider press also a woman is standing who is operating the cider press. So this woman is also Autumn. So he says that since this woman stands patiently for hours. Acha, this cider press does not work like that 200 rupee machine that all of us have at our homes, जिसके अंदर संतरा रख के निचोड़ के एकदम मस्त बहुत जल्दी थोड़ा सा रस बना लेते हो, वो वाले नहीं. साइडर प्रेस धीरे धीरे काम करता है क्योंकि वाइन बनानी है, जूस नहीं बनाना है. सो दिस वर्क्स फॉर आवर्स एंड फॉर आवर्स एप्पल्स ooze out यानी धीरे धीरे रस निकलता है. सो द वुमन स्टैंड्स देयर पेशेंटली. सो ही इज कंपेयरिंग दैट वुमन टू ऑटम. ही इज सेइंग दैट ऑटम इज दैट वुमन ऑल्सो. सो इन दिस स्टैंजा the poet is personifying autumn and he is making it a beautiful woman. This beautiful woman is the harvester also. This beautiful woman is the gleaner also. Gleaner यानी जो फसल को लेके जाता है. This beautiful woman is the cider press operator also. So he has compared this to a beautiful woman in several forms. कर लिया romanticism. अभी देखो, तुमने ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे मूवीज के ट्रेलर के नीचे जाके ऐसे कमेंट करते हैं, हु एल्स थिंक्स दैट राजकुमार राव इज वे बेटर देन वरुण, सिद्धार्थ, रणबीर एंड मोर स्टार किड्स. एक्टिंग बेटा अंदर से आती है, स्टार के बच्चे होने से नहीं. सो देखो, आई डोंट केयर फॉर स्टार किड्स, बट ऐसे राजकुमार राव की तारीफ करने के लिए वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक तो सिद्धार्थ मल्होत्रा कब से स्टार किड हो गए, चलो छोड़ो. सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर की बेइज्जती करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. दिस इज अ वेरी बैड फॉर्म ऑफ अप्रिशिएटिंग समवन दैट यू नीड टू क्रिटिसाइज समवन एल्स फॉर दैट, है ना. अभी देखो, देयर आर मोर पीपल लाइक दिस. राजकुमार राव इज फार की स्पेलिंग गलत, फार बेटर एक्टर देन मेनी इन बॉलीवुड. अरे कोई जरूरत ही नहीं थी इस कमेंट की. उसके ऊपर मूवीज लाइक जुड़वा हैज, अच्छा ये दिस वाज ट्रेलर ऑफ आई थिंक न्यूटन. मूवीज लाइक जुड़वा हैज क्रॉस्ड 100 करोड़ एंड दिस मूवी मेड ओनली 28 करोड़. ठीक है. सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अप्रिशिएट दिस मूवी बाय क्रिटिसाइजिंग सम अदर मूवी. Movies like Jodwa has crossed 100 crore and this movie made only 28 crore. So basically what is happening over here, I just took screenshots of the. नहीं देखो, you need to realize ये कोई और मूवी है, ये कोई और मूवी है, बट लेट मी टेल यू, द पर्सन हु हैज मेड दिस कमेंट इज द सेम. मैंने इसका नाम ढक दिया है, दिस इज द सेम पर्सन. आई थिंक ही इज अ प्रोफेशनल इन डूइंग दिस. ही विल गो अंडर मूवी का ट्रेलर एंड ही विल टाइप कमेंट्स लाइक दिस कि वो जुड़वा बहुत, अरे तूने नींद, चल छोड़. सो यू नीड टू रियलाइज दैट फॉर अप्रिशिएटिंग समथिंग इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिटिसाइज समवन एल्स और कंपेयर इट विथ समवन एल्स. पर ये जॉन मिल्टन नहीं मानेगा, है ना. जॉन मिल्टन इज गोइंग टू मेक कंपैरिजंस बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन एंड ही इज गोइंग टू से सून कि सबको लगता है कि स्प्रिंग का अपना म्यूजिक है लेकिन ऑटम का कोई म्यूजिक नहीं कहता. तो मैं बताऊंगा कि ऑटम में कितना म्यूजिक है. तो ये ऑटम से सीधे बात करेगा, उसकी तारीफ करते हुए सीधे. इट विल नाउ डायरेक्टली टॉक टू ऑटम. पिछले 2 स्टैंजा में हमसे बात कर रहा था ऑटम के बारे में. इन दिस स्टैंजा ही इज गोइंग टू टॉक टू ऑटम डायरेक्टली एंड ही इज गोइंग टू टेल इट हाउ मच बेटर और हाउ मच एज ब्यूटिफुल इट इज विथ स्प्रिंग, है ना. बिल्कुल बराबर का सुंदर म्यूजिक है इसका स्प्रिंग के साथ. जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि ऑटम ने स्प्रिंग को ये बात बोली हो कि तुम्हारे पास म्यूजिक है तो सब तारीफ करते हैं, मेरी म्यूजिक की कोई तारीफ नहीं करता. ऐसा कुछ भी नहीं है ना. पर ठीक है, ये कंपैरिजन करके ही तारीफ करना चाहते तो करो. अभी देखो बेटा, ऐसा है दैट स्प्रिंग इज वन ऑफ द फेवरेट सीजन्स ऑफ पोएट्स. उन्होंने इतनी पोएम लिखी स्प्रिंग पे, इतनी पोएम हिंदी में भी तुमको बहुत मिलेंगी, वसंत ऋतु पे कविताएं. बट यू विल फाइंड वेरी फ्यू पोएम्स ऑन ऑटम या पतझड़. ठीक है. सो दिस पोएट इज गोइंग टू टैप इनटू दैट इनसिक्योरिटी ऑफ द ऑटम एंड देन ही सेज वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे. यानी कहाँ गए अब स्प्रिंग के गाने, कहाँ गए, कहाँ है वे, कहाँ है भैया, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ. बात ही नहीं है हिम्मत की, अब तो गाने हैं, उनको क्या हिम्मत करना. ठीक है, पर वो कह रहा है कि स्प्रिंग के भी कहाँ गाने गए, मेरे सामने आओ. थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू. अब वो ऑटम से कह रहा है कि उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा खुद का म्यूजिक है. स्प्रिंग सीजन का म्यूजिक हो नहीं हो, तुम्हारा खुद का म्यूजिक है. वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे. ये बार्ड क्लाउड्स होते बेटा, ये सलाखों जैसे पेड़, ये नहीं दिख रहे हैं
क्लाउड्स, बार्स जैसे, ऐसे नहीं कहते आई विल थ्रो यू बिहाइंड द बार्स, यानी मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा सलाखों के पीछे। तो बार्ड क्लाउड्स यानी ऐसे जो क्लाउड्स हैं, जब ये सॉफ्ट डाइंग डे को ब्लूम कर रहे होते हैं, यानी जब दिन खत्म होने वाला होता है और ऐसे सुंदर सुंदर बादल आसमान में आ जाते हैं, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। स्टबल प्लेन्स यानी ये वाले प्लेन, स्टबल मतलब जहाँ पे कटाई हो चुकी है और छोटी छोटी घास रह गई है, जिस खेत में कटाई होने के बाद छोटी छोटी घास रह गई है वो स्टबल प्लेन कहलाता है। सो दीज स्टबल प्लेन्स आर टच्ड विथ रोजी ह्यू, दीज हैव अ पिंच ऑफ पिंक कलर in the evenings in autumn season. This poet might have seen, I have never, but I have not seen a lot of the world. So anyway, पिंक पिंक हो जाता है पूरा आसमान, द स्काई इज पिंक इन द इवनिंग ऑफ ऑटम्स। तो ये जमीन जो है थोड़ी पिंक पिंक दिखती है। उस समय क्या होता है, उस समय म्यूजिक बनता है ऑटम का। कैसे बनता है, देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल gnats मोन। ये gnats होते बेटा भवरे, है ना। दीज स्मॉल स्मॉल gnats दे सिंग इन अ वेलफुल कॉयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफुल कॉयर, अ वेरी सैड सॉन्ग इन अ ग्रुप दे सिंग, है ना। जैसे धर्मा का म्यूजिक नहीं आता, दैट इज अ कॉयर and it's a wailful choir because it seems that all of them are very sad. So these bhavre, when these gnats sing, it is also as if they are very sad. And what are they sad over, they are sad over the dying day। तो दिन खत्म हो रहा है शायद उसकी उदासी है, या सीजन खत्म हो रहा है ऑटम का उस बात की उदासी है। सो दीज आर सिंगिंग अ वेलफुल कॉयर। वेयर आर दे सिंगिंग, अमंग द रिवर सैलोज, ये नदी के आसपास होते हैं। बोन अलोफ्ट, बोन अलोफ्ट यानी इनको उठा के रखा है किसने, और सिंकिंग या गिरा के रखा है किसने, एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, यानी जब हवा चलती है, व्हेन द विंड लिव्स दीज gnats दे गो अप इन द एयर, एंड व्हेन विंड लीव्स दीज gnats कम डाउन। सो ये ऊपर नीचे होते हुए गाना गाते रहते हैं। तो इनकी एक आवाज है, वो एक संगीत है ऑटम सीजन का। ऑल फुल्ली ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बोन, ये जो है दीज लैम्स दे शाउट फ्रॉम हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर से इनके चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। कितना क्यूट है। हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विथ, अभी देखो तुम लोग ने सुन लो कौन कौन सा म्यूजिक आ गया। एक तो ये नैट्स वाला म्यूजिक आ गया और ये लैम्स वाला म्यूजिक आ गया। अभी तीसरा म्यूजिक सुनो, हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट। अभी ये हेज क्रिकेट्स क्या होते हैं, दीज आर हेजेस। हेज समझते हैं आप लोग, घर के आसपास ऐसे फेंस बनाते लकड़ी से, दीज आर नोन एज हेजेस। ऐसी भी हेज होती है, विद ग्रास ऑल्सो यू कैन मेक हेज। सो दीज हेजेस आर देयर एंड अच्छा, these are also known as croft, croft भी कहते हैं। these wooden ones are known as croft also। तो इधर crickets होते हैं, crickets यानी वो छोटे वाले जो कीड़े होते हैं। I don't know their name, I don't remember their name right now। वॉट एवर क्रिकेट्स है, वो छोटे कीड़े होते हैं, इनकी आवाज आती है टर 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 की, एक तो उनकी आवाज आती है, ठीक है। ट्रेबल सॉफ्ट यानी बिल्कुल धीरे धीरे आवाज आती है ना। किसकी आती है, रॉबिन रेडब्रेस्ट की, फ्रॉम गार्डन क्रॉफ्ट। तो गार्डन क्रॉफ्ट पे आके रॉबिन रेडब्रेस्ट भी बैठ जाता है। दिस ब्यूटिफुल बर्ड इट सिट्स एंड इट विसल्स इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस। सो देयर इज दिस म्यूजिक ऑल्सो। किस किस का म्यूजिक हो गया वापस बता देता हूँ। द म्यूजिक ऑफ दीज नैट्स, द म्यूजिक ऑफ दीज लैम्स शाउटिंग, the music of crickets which reside near these hedges, the music of these of the whistling of these red breast birds which sit on these crofts, है ना। and at last the gathering of swallows twitter in the sky। ऐसे वाले पक्षी आसमान में इकट्ठे हो जाते हैं and they start twittering। ये बहुत बहुत ज्यादा गाते हैं, ये चिल्लम चिल्ली करते हैं, and their sound is also music। अभी देखो वही किया है इसने, ये बहुत ही गंदा गाते हैं, शोर मचाते हैं। ये इनका भी चीखना चिल्लाना शोर ही है और ये भी कोई म्यूजिक नहीं है। पर रोमांटिसिज्म क्या कहता है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। तो इनके शोर को भी वो बोलता है कि इट्स ब्यूटीफुल। तो इन दिस वे द पोएट हैज टोल्ड दैट ऑटम हैज इट्स ओन म्यूजिक। So in the three stanzas, the first stanza was about the fullness, the abundance of autumn season. The second stanza was about personification of autumn season into four beautiful women doing several different tasks. The third stanza was about music of autumn season, which is not actually music, it's just noise. But anyway, he wanted to compare autumn to spring। अभी spring में तो बहुत पक्षी आ जाते हैं, सुंदर सुंदर गाते, क्योंकि बहुत सुंदर मौसम होता है। पर ऑटम नहीं है, पर ठीक है, अब करनी थी उसकी तारीफ तो इस तरीके से की। सो इन दिस वे वी केम टू नो अबाउट दीज थिंग्स एंड दिस स्वॉलो रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग। चलो, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। इफ नॉट, देखेंगे फिर। चलो, गुड डे।